کیا پکانا ہے؟ ہر روز کا یہ ایک سوال ہے. آج تمہاری فرمائش پہ کچھ بنا لیتے. غریبوں کی کیا فرمائش؟ اوہو، ایسی باتیں تو نہیں کرو، تم بھی وہی کھاتی ہو. پر فرمائش کی بات تو الگ ہے نا. دیکھو اس گھر میں جو کچھ بھی پکتا ہے تو بولو نا. میرا نا اچار گوشت کھانے کا دل کر رہا ہے. یہ ہوئی نا فرمائش. چکن نکال لو اور دھو لو. ایک کام کرو، اور مسالے میں نکالتی ہوں. ایک بات کہوں؟ ہاں بولو. آپ کے ساتھ گھر والوں کا رویہ کتنا اچھا ہو گیا. مجھے لگتا ہے میرا صبر رنگ گیا ہے. ویسے اللہ کا بڑا شکر ہے. ہاں، تب مجھے لگا تھا ضرور کوئی جان چڑھا کر جائے گی. ہاں، بس اپنی مستی میں مست رہتی ہے. شبو ایسی باتیں نہیں کرتے، بس کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچتے. یا اللہ، میں تجھ سے تیری پناہ مانگتی ہوں میرے رب. مجھے اور میرے بچوں کو گناہوں سے دور رکھنا، یہ ازمائشی اور فتنہ بھرے دور سے جو تیری بارگاہ رسوائی کا باعث بنے. مجھے معاف کر دے میرے مولا، معاف کر دینا میرے اللہ. ہم نے تو یہاں ضد پکڑی ہوئی. تو وہ بھی گھر واپس نہیں آئے گی جب تک رضا بھائی اسے لینے نہیں آئیں گے. اور اگر رضا بھائی نہ آئے تو چند کا پل. ایک سرسبز وادی میں دو پہاڑوں کے درمیان ایک گہری کھائی تھی. لوگ کہتے تھے کہ ہر پورے چند کی رات اس کھائی پر روشنی کا ایک پل بنتا ہے، مگر وہ صرف چند لمحوں کے لیے نظر آتا ہے. گاؤں کا 16 سالہ لڑکا ارسلان ہمیشہ اس پل کی حقیقت جاننا چاہتا تھا. ایک رات وہ چند نکلتے ہی وادی کی طرف روانہ ہوا. راستے میں اسے ایک زخمی بھیڑ پالنے والا ملا. ارسلان نے اپنی پٹین سے اس کے زخم باندھے اور اسے محفوظ جگہ تک پہنچایا. پھر اسے ایک بوڑھا شخص ملا جو اندھیرے میں راستہ بھول گیا تھا. ارسلان نے اسے اس کے گھر تک پہنچایا. جب وہ کھائی کے کنارے پہنچا تو چند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا. اچانک چاندنی کی کرنیں آپس میں ملنے لگیں اور واقعی ایک روشن پل نمودار ہو گیا. ارسلان احتیاط سے پل پار کر کے دوسری طرف پہنچا. وہاں نہ کوئی خزانہ تھا نہ سونے کے ڈھیر، صرف ایک قدیم درخت کھڑا تھا جس کے نیچے ایک سنگ مرمر کی تختی رکھی تھی. اس پر سنہری حروف میں لکھا تھا، روشنی ہمیشہ اس کے راستے میں اترتی ہے جو دوسروں کے لیے روشنی بنتا ہے. ارسلان نے تختی کو وہیں رہنے دیا اور خاموشی سے واپس لوٹ آیا. گاؤں پہنچ کر اس نے ایک چھوٹا سا تعلیمی مرکز قائم کیا جہاں غریب بچوں کو مفت پڑھایا جاتا تھا. وقت کے ساتھ وہ مرکز ایک بڑے اسکول میں تبدیل ہو گیا اور پورا علاقہ تعلیم کی روشنی سے جگمگا اٹھا. کئی برس بعد جب کسی نے ارسلان سے پوچھا کیا واقعی چند کا پل موجود تھا، وہ مسکرا کر بولا، پل صرف ایک رات کے لیے تھا مگر اس نے مجھے زندگی بھر کا راستہ دکھا دیا. سبق: جو انسان دوسروں کی زندگی میں علم، امید اور بھلائی کی روشنی پھیلاتا ہے اس کے لیے کامیابی کے راستے خود روشن ہو جاتے ہیں. چند کا پل. ایک سرسبز وادی میں دو پہاڑوں کے درمیان ایک گہری کھائی تھی. لوگ کہتے تھے کہ ہر پورے چند کی رات اس کھائی پر روشنی کا ایک پل بنتا ہے، مگر وہ صرف چند لمحوں کے لیے نظر آتا ہے. گاؤں کا 16 سالہ لڑکا ارسلان ہمیشہ اس پل کی حقیقت جاننا چاہتا تھا. ایک رات وہ چند نکلتے ہی وادی کی طرف روانہ ہوا. راستے میں اسے ایک زخمی بھیڑ پالنے والا ملا. ارسلان نے اپنی پٹین سے اس کے زخم باندھے اور اسے محفوظ جگہ تک پہنچایا. پھر اسے ایک بوڑھا شخص ملا جو اندھیرے میں راستہ بھول گیا تھا. ارسلان نے اسے اس کے گھر تک پہنچایا. جب وہ کھائی کے کنارے پہنچا تو چند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا. اچانک چاندنی کی کرنیں آپس میں ملنے لگیں اور واقعی ایک روشن پل نمودار ہو گیا. ارسلان احتیاط سے پل پار کر کے دوسری طرف پہنچا. وہاں نہ کوئی خزانہ تھا نہ سونے کے ڈھیر، صرف ایک قدیم درخت کھڑا تھا جس کے نیچے ایک سنگ مرمر کی تختی رکھی تھی. اس پر سنہری حروف میں لکھا تھا، روشنی ہمیشہ اس کے راستے میں اترتی ہے جو دوسروں کے لیے روشنی بنتا ہے. ارسلان نے تختی کو وہیں رہنے دیا اور خاموشی سے واپس لوٹ آیا. گاؤں پہنچ کر اس نے ایک چھوٹا سا تعلیمی مرکز قائم کیا جہاں غریب بچوں کو مفت پڑھایا جاتا تھا.
वक्त के साथ वो मरकज़ एक बड़े स्कूल में तब्दील हो गया और पूरा इलाका तालीम की रोशनी से जगमगा उठा। कई बरस बाद जब किसी ने अरसलान से पूछा क्या वाकई चंद का पल मौजूद था, वो मुस्कुरा कर बोला, पल सिर्फ एक रात के लिए था, मगर उसने मुझे ज़िंदगी भर का रास्ता दिखा दिया। सबक: जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में इल्म, उम्मीद और भलाई की रोशनी फैलाता है, उसके लिए कामयाबी के रास्ते खुद रोशन हो जाते हैं। चंद का पल। एक सरसब्ज वादी में दो पहाड़ों के दरमियान एक गहरी खाई थी। लोग कहते थे कि हर पूरे चंद की रात इस खाई पर रोशनी का एक पल बनता है, मगर वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए नजर आता है। गांव का 16 साला लड़का अरसलान हमेशा इस पल की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो चंद निकलते ही वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक जख्मी भीड़ पालने वाला मिला। अरसलान ने अपनी पिटीन से उसके जख्म बांधे और उसे महफूज जगह तक पहुंचाया। फिर इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो अंधेरे में रास्ता भूल गया था। अरसलान ने उसे इसके घर तक पहुंचाया। जब वो खाई के किनारे पहुंचा तो चंद अपनी पूरी आब-व-ताब से चमक रहा था। अचानक चांदनी की किरणें आपस में मिलने लगीं और वाकई एक रोशन पल नमूदार हो गया। अरसलान एहतियात से पल पार करके दूसरी तरफ पहुंचा। वहाँ ना कोई खजाना था, ना सोने के ढेर, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके नीचे एक सिंग मुरम्मर की तख्ती रखी थी। इस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, रोशनी हमेशा इसके रास्ते में उतरती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। अरसलान ने तख्ती को वहीं रहने दिया और खामोशी से वापस लौट आया। गांव पहुंचकर उसने एक छोटा सा तालीमी मरकज़ कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। वक्त के साथ वो मरकज़ एक बड़े स्कूल में तब्दील हो गया और पूरा इलाका तालीम की रोशनी से जगमगा उठा। कई बरस बाद जब किसी ने अरसलान से पूछा क्या वाकई चंद का पल मौजूद था, वो मुस्कुरा कर बोला, पल सिर्फ एक रात के लिए था, मगर उसने मुझे ज़िंदगी भर का रास्ता दिखा दिया। सबक: जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में इल्म, उम्मीद और भलाई की रोशनी फैलाता है, उसके लिए कामयाबी के रास्ते खुद रोशन हो जाते हैं। चंद का पल। एक सरसब्ज वादी में दो पहाड़ों के दरमियान एक गहरी खाई थी। लोग कहते थे कि हर पूरे चंद की रात इस खाई पर रोशनी का एक पल बनता है, मगर वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए नजर आता है। गांव का 16 साला लड़का अरसलान हमेशा इस पल की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो चंद निकलते ही वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक जख्मी भीड़ पालने वाला मिला। अरसलान ने अपनी पिटीन से उसके जख्म बांधे और उसे महफूज जगह तक पहुंचाया। फिर इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो अंधेरे में रास्ता भूल गया था। अरसलान ने उसे इसके घर तक पहुंचाया। जब वो खाई के किनारे पहुंचा तो चंद अपनी पूरी आब-व-ताब से चमक रहा था। अचानक चांदनी की किरणें आपस में मिलने लगीं और वाकई एक रोशन पल नमूदार हो गया। अरसलान एहतियात से पल पार करके दूसरी तरफ पहुंचा। वहाँ ना कोई खजाना था, ना सोने के ढेर, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके नीचे एक सिंग मुरम्मर की तख्ती रखी थी। इस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, रोशनी हमेशा इसके रास्ते में उतरती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। अरसलान ने तख्ती को वहीं रहने दिया और खामोशी से वापस लौट आया। गांव पहुंचकर उसने एक छोटा सा तालीमी मरकज़ कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। वक्त के साथ वो मरकज़ एक बड़े स्कूल में तब्दील हो गया और पूरा इलाका तालीम की रोशनी से जगमगा उठा। कई बरस बाद जब किसी ने अरसलान से पूछा क्या वाकई चंद का पल मौजूद था, वो मुस्कुरा कर बोला, पल सिर्फ एक रात के लिए था, मगर उसने मुझे ज़िंदगी भर का रास्ता दिखा दिया। सबक: जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में इल्म, उम्मीद और भलाई की रोशनी फैलाता है, उसके लिए कामयाबी के रास्ते खुद रोशन हो जाते हैं। चंद का पल। एक सरसब्ज वादी में दो पहाड़ों के दरमियान एक गहरी खाई थी। लोग कहते थे कि हर पूरे चंद की रात इस खाई पर रोशनी का एक पल बनता है, मगर वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए नजर आता है। गांव का 16 साला लड़का अरसलान हमेशा इस पल की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो चंद निकलते ही वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक जख्मी भीड़ पालने वाला मिला। अरसलान ने अपनी पिटीन से उसके जख्म बांधे और उसे महफूज जगह तक पहुंचाया। फिर इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो अंधेरे में रास्ता भूल गया था। अरसलान ने उसे इसके घर तक पहुंचाया। जब वो खाई के किनारे पहुंचा तो चंद अपनी पूरी आब-व-ताब से चमक रहा था। अचानक चांदनी की किरणें आपस में मिलने लगीं और वाकई एक रोशन पल नमूदार हो गया। अरसलान एहतियात से पल पार करके दूसरी तरफ पहुंचा। वहाँ ना कोई खजाना था, ना सोने के ढेर, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके नीचे एक सिंग मुरम्मर की तख्ती रखी थी। इस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था,
रोशनी हमेशा इसके रास्ते में उतरती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। अरसलान ने तख्ती को वहीं रहने दिया और खामोशी से वापस लौट आया। गांव पहुंचकर उसने एक छोटा सा तालीमी मरकज़ कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। वक्त के साथ वो मरकज़ एक बड़े स्कूल में तब्दील हो गया और पूरा इलाका तालीम की रोशनी से जगमगा उठा। कई बरस बाद जब किसी ने अरसलान से पूछा क्या वाकई चंद का पल मौजूद था, वो मुस्कुरा कर बोला, पल सिर्फ एक रात के लिए था मगर उसने मुझे ज़िंदगी भर का रास्ता दिखा दिया। सबक, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में इल्म, उम्मीद और भलाई की रोशनी फैलाता है उसके लिए कामयाबी के रास्ते खुद रोशन हो जाते हैं। चंद का पल। एक सरसब्ज वादी में दो पहाड़ों के दरमियान एक गहरी खाई थी। लोग कहते थे कि हर पूरे चंद की रात इस खाई पर रोशनी का एक पल बनता है मगर वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए नजर आता है। गांव का 16 साला लड़का अरसलान हमेशा इस पल की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो चंद निकलते ही वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक जख्मी भीड़ पालने वाला मिला। अरसलान ने अपनी पिटीन से उसके जख्म बांधे और उसे महफूज जगह तक पहुंचाया। फिर इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो अंधेरे में रास्ता भूल गया था। अरसलान ने उसे इसके घर तक पहुंचाया। जब वो खाई के किनारे पहुंचा तो चंद अपनी पूरी आब-व-ताब से चमक रहा था। अचानक चांदनी की किरणें आपस में मिलने लगीं और वाकई एक रोशन पल नमूदार हो गया। अरसलान एहतियात से पल पार करके दूसरी तरफ पहुंचा। वहाँ ना कोई खजाना था ना सोने के ढेर, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके नीचे एक सिंग मुरम्मर की तख्ती रखी थी। इस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, रोशनी हमेशा इसके रास्ते में उतरती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। अरसलान ने तख्ती को वहीं रहने दिया और खामोशी से वापस लौट आया। गांव पहुंचकर उसने एक छोटा सा तालीमी मरकज़ कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। वक्त के साथ वो मरकज़ एक बड़े स्कूल में तब्दील हो गया और पूरा इलाका तालीम की रोशनी से जगमगा उठा। कई बरस बाद जब किसी ने अरसलान से पूछा क्या वाकई चंद का पल मौजूद था, वो मुस्कुरा कर बोला, पल सिर्फ एक रात के लिए था मगर उसने मुझे ज़िंदगी भर का रास्ता दिखा दिया। सबक, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में इल्म, उम्मीद और भलाई की रोशनी फैलाता है उसके लिए कामयाबी के रास्ते खुद रोशन हो जाते हैं। चंद का पल। एक सरसब्ज वादी में दो पहाड़ों के दरमियान एक गहरी खाई थी। लोग कहते थे कि हर पूरे चंद की रात इस खाई पर रोशनी का एक पल बनता है मगर वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए नजर आता है। गांव का 16 साला लड़का अरसलान हमेशा इस पल की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो चंद निकलते ही वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक जख्मी भीड़ पालने वाला मिला। अरसलान ने अपनी पिटीन से उसके जख्म बांधे और उसे महफूज जगह तक पहुंचाया। फिर इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो अंधेरे में रास्ता भूल गया था। अरसलान ने उसे इसके घर तक पहुंचाया। जब वो खाई के किनारे पहुंचा तो चंद अपनी पूरी आब-व-ताब से चमक रहा था। अचानक चांदनी की किरणें आपस में मिलने लगीं और वाकई एक रोशन पल नमूदार हो गया। अरसलान एहतियात से पल पार करके दूसरी तरफ पहुंचा। वहाँ ना कोई खजाना था ना सोने के ढेर, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके नीचे एक सिंग मुरम्मर की तख्ती रखी थी। इस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, रोशनी हमेशा इसके रास्ते में उतरती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। अरसलान ने तख्ती को वहीं रहने दिया और खामोशी से वापस लौट आया। गांव पहुंचकर उसने एक छोटा सा तालीमी मरकज़ कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। वक्त के साथ वो मरकज़ एक बड़े स्कूल में तब्दील हो गया और पूरा इलाका तालीम की रोशनी से जगमगा उठा। कई बरस बाद जब किसी ने अरसलान से पूछा क्या वाकई चंद का पल मौजूद था, वो मुस्कुरा कर बोला, पल सिर्फ एक रात के लिए था मगर उसने मुझे ज़िंदगी भर का रास्ता दिखा दिया। सबक, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में इल्म, उम्मीद और भलाई की रोशनी फैलाता है उसके लिए कामयाबी के रास्ते खुद रोशन हो जाते हैं। चंद का पल। एक सरसब्ज वादी में दो पहाड़ों के दरमियान एक गहरी खाई थी। लोग कहते थे कि हर पूरे चंद की रात इस खाई पर रोशनी का एक पल बनता है मगर वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए नजर आता है। गांव का 16 साला लड़का अरसलान हमेशा इस पल की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो चंद निकलते ही वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक जख्मी भीड़ पालने वाला मिला। अरसलान ने अपनी पिटीन से उसके जख्म बांधे और उसे महफूज जगह तक पहुंचाया। फिर इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो अंधेरे में रास्ता भूल गया था। अरसलान ने उसे इसके घर तक पहुंचाया। जब वो खाई के किनारे पहुंचा तो चंद अपनी पूरी आब-व-ताब से चमक रहा था। अचानक चांदनी की किरणें आपस में मिलने लगीं और वाकई एक रोशन पल नमूदार हो गया।
अरसलान एहतियात से पल पार करके दूसरी तरफ पहुंचा। वहाँ ना कोई खजाना था, ना सोने के ढेर, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके नीचे एक सिंग मुरम्मर की तख्ती रखी थी। इस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, रोशनी हमेशा इसके रास्ते में उतरती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। अरसलान ने तख्ती को वहीं रहने दिया और खामोशी से वापस लौट आया। गांव पहुंचकर उसने एक छोटा सा तालीमी मरकज़ कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। वक्त के साथ वो मरकज़ एक बड़े स्कूल में तब्दील हो गया और पूरा इलाका तालीम की रोशनी से जगमगा उठा। कई बरस बाद जब किसी ने अरसलान से पूछा क्या वाकई चंद का पल मौजूद था, वो मुस्कुरा कर बोला, पल सिर्फ एक रात के लिए था, मगर उसने मुझे ज़िंदगी भर का रास्ता दिखा दिया। सबक, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में इल्म, उम्मीद और भलाई की रोशनी फैलाता है, उसके लिए कामयाबी के रास्ते खुद रोशन हो जाते हैं। चंद का पल। एक सरसब्ज वादी में दो पहाड़ों के दरमियान एक गहरी खाई थी। लोग कहते थे कि हर पूरे चंद की रात इस खाई पर रोशनी का एक पल बनता है, मगर वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए नजर आता है। गांव का 16 साला लड़का अरसलान हमेशा इस पल की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो चंद निकलते ही वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक जख्मी भीड़ पालने वाला मिला। अरसलान ने अपनी पिटीन से उसके जख्म बांधे और उसे महफूज जगह तक पहुंचाया। फिर इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो अंधेरे में रास्ता भूल गया था। अरसलान ने उसे इसके घर तक पहुंचाया। जब वो खाई के किनारे पहुंचा तो चंद अपनी पूरी आब-व-ताब से चमक रहा था। अचानक चांदनी की किरणें आपस में मिलने लगीं और वाकई एक रोशन पल नमूदार हो गया। अरसलान एहतियात से पल पार करके दूसरी तरफ पहुंचा। वहाँ ना कोई खजाना था, ना सोने के ढेर, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके नीचे एक सिंग मुरम्मर की तख्ती रखी थी। इस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, रोशनी हमेशा इसके रास्ते में उतरती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। अरसलान ने तख्ती को वहीं रहने दिया और खामोशी से वापस लौट आया। गांव पहुंचकर उसने एक छोटा सा तालीमी मरकज़ कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। वक्त के साथ वो मरकज़ एक बड़े स्कूल में तब्दील हो गया और पूरा इलाका तालीम की रोशनी से जगमगा उठा। कई बरस बाद जब किसी ने अरसलान से पूछा क्या वाकई चंद का पल मौजूद था, वो मुस्कुरा कर बोला, पल सिर्फ एक रात के लिए था, मगर उसने मुझे ज़िंदगी भर का रास्ता दिखा दिया। सबक, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में इल्म, उम्मीद और भलाई की रोशनी फैलाता है, उसके लिए कामयाबी के रास्ते खुद रोशन हो जाते हैं। चंद का पल। एक सरसब्ज वादी में दो पहाड़ों के दरमियान एक गहरी खाई थी। लोग कहते थे कि हर पूरे चंद की रात इस खाई पर रोशनी का एक पल बनता है, मगर वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए नजर आता है। गांव का 16 साला लड़का अरसलान हमेशा इस पल की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो चंद निकलते ही वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक जख्मी भीड़ पालने वाला मिला। अरसलान ने अपनी पिटीन से उसके जख्म बांधे और उसे महफूज जगह तक पहुंचाया। फिर इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो अंधेरे में रास्ता भूल गया था। अरसलान ने उसे इसके घर तक पहुंचाया। जब वो खाई के किनारे पहुंचा तो चंद अपनी पूरी आब-व-ताब से चमक रहा था। अचानक चांदनी की किरणें आपस में मिलने लगीं और वाकई एक रोशन पल नमूदार हो गया। अरसलान एहतियात से पल पार करके दूसरी तरफ पहुंचा। वहाँ ना कोई खजाना था, ना सोने के ढेर, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके नीचे एक सिंग मुरम्मर की तख्ती रखी थी। इस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, रोशनी हमेशा इसके रास्ते में उतरती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। अरसलान ने तख्ती को वहीं रहने दिया और खामोशी से वापस लौट आया। गांव पहुंचकर उसने एक छोटा सा तालीमी मरकज़ कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। वक्त के साथ वो मरकज़ एक बड़े स्कूल में तब्दील हो गया और पूरा इलाका तालीम की रोशनी से जगमगा उठा। कई बरस बाद जब किसी ने अरसलान से पूछा क्या वाकई चंद का पल मौजूद था, वो मुस्कुरा कर बोला, पल सिर्फ एक रात के लिए था, मगर उसने मुझे ज़िंदगी भर का रास्ता दिखा दिया। सबक, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में इल्म, उम्मीद और भलाई की रोशनी फैलाता है, उसके लिए कामयाबी के रास्ते खुद रोशन हो जाते हैं। चंद का पल। एक सरसब्ज वादी में दो पहाड़ों के दरमियान एक गहरी खाई थी। लोग कहते थे कि हर पूरे चंद की रात इस खाई पर रोशनी का एक पल बनता है, मगर वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए नजर आता है। गांव का 16 साला लड़का अरसलान हमेशा इस पल की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो चंद निकलते ही वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक जख्मी भीड़ पालने वाला मिला। अरसलान ने अपनी पिटीन से उसके जख्म बांधे और उसे महफूज जगह तक पहुंचाया। फिर इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो अंधेरे में रास्ता भूल गया था।
अरसलान ने उसे इसके घर तक पहुंचाया। जब वो खाई के किनारे पहुंचा तो चंद अपनी पूरी आबवाओ-ताब से चमक रहा था। अचानक चांदनी की किरणें आपस में मिलने लगीं और वाकई एक रोशन पल नमूदार हो गया। अरसलान एहतियात से पल पार करके दूसरी तरफ पहुंचा। वहाँ ना कोई खजाना था, ना सोने के ढेर, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके नीचे एक सिंग मुरम्मर की तख्ती रखी थी। इस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, रोशनी हमेशा इसके रास्ते में उतरती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। अरसलान ने तख्ती को वहीं रहने दिया और खामोशी से वापस लौट आया। गांव पहुंचकर उसने एक छोटा सा तालीमी मरकज़ कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। वक्त के साथ वो मरकज़ एक बड़े स्कूल में तब्दील हो गया और पूरा इलाका तालीम की रोशनी से जगमगा उठा। कई बरस बाद जब किसी ने अरसलान से पूछा क्या वाकई चंद का पल मौजूद था, वो मुस्कुरा कर बोला, पल सिर्फ एक रात के लिए था, मगर उसने मुझे ज़िंदगी भर का रास्ता दिखा दिया। सबक, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में इल्म, उम्मीद और भलाई की रोशनी फैलाता है, उसके लिए कामयाबी के रास्ते खुद रोशन हो जाते हैं। चंद का पल। एक सरसब्ज़ वादी में दो पहाड़ों के दरमियान एक गहरी खाई थी। लोग कहते थे कि हर पूरे चंद की रात इस खाई पर रोशनी का एक पल बनता है, मगर वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए नजर आता है। गांव का 16 साला लड़का अरसलान हमेशा इस पल की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो चंद निकलते ही वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक जख्मी भीड़ पालने वाला मिला। अरसलान ने अपनी पिटीन से उसके जख्म बांधे और उसे महफूज जगह तक पहुंचाया। फिर इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो अंधेरे में रास्ता भूल गया था। अरसलान ने उसे इसके घर तक पहुंचाया। जब वो खाई के किनारे पहुंचा तो चंद अपनी पूरी आबवाओ-ताब से चमक रहा था। अचानक चांदनी की किरणें आपस में मिलने लगीं और वाकई एक रोशन पल नमूदार हो गया। अरसलान एहतियात से पल पार करके दूसरी तरफ पहुंचा। वहाँ ना कोई खजाना था, ना सोने के ढेर, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके नीचे एक सिंग मुरम्मर की तख्ती रखी थी। इस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, रोशनी हमेशा इसके रास्ते में उतरती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। अरसलान ने तख्ती को वहीं रहने दिया और खामोशी से वापस लौट आया। गांव पहुंचकर उसने एक छोटा सा तालीमी मरकज़ कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। वक्त के साथ वो मरकज़ एक बड़े स्कूल में तब्दील हो गया और पूरा इलाका तालीम की रोशनी से जगमगा उठा। कई बरस बाद जब किसी ने अरसलान से पूछा क्या वाकई चंद का पल मौजूद था, वो मुस्कुरा कर बोला, पल सिर्फ एक रात के लिए था, मगर उसने मुझे ज़िंदगी भर का रास्ता दिखा दिया। सबक, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में इल्म, उम्मीद और भलाई की रोशनी फैलाता है, उसके लिए कामयाबी के रास्ते खुद रोशन हो जाते हैं। चंद का पल। एक सरसब्ज़ वादी में दो पहाड़ों के दरमियान एक गहरी खाई थी। लोग कहते थे कि हर पूरे चंद की रात इस खाई पर रोशनी का एक पल बनता है, मगर वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए नजर आता है। गांव का 16 साला लड़का अरसलान हमेशा इस पल की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो चंद निकलते ही वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक जख्मी भीड़ पालने वाला मिला। अरसलान ने अपनी पिटीन से उसके जख्म बांधे और उसे महफूज जगह तक पहुंचाया। फिर इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो अंधेरे में रास्ता भूल गया था। अरसलान ने उसे इसके घर तक पहुंचाया। जब वो खाई के किनारे पहुंचा तो चंद अपनी पूरी आबवाओ-ताब से चमक रहा था। अचानक चांदनी की किरणें आपस में मिलने लगीं और वाकई एक रोशन पल नमूदार हो गया। अरसलान एहतियात से पल पार करके दूसरी तरफ पहुंचा। वहाँ ना कोई खजाना था, ना सोने के ढेर, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके नीचे एक सिंग मुरम्मर की तख्ती रखी थी। इस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, रोशनी हमेशा इसके रास्ते में उतरती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। अरसलान ने तख्ती को वहीं रहने दिया और खामोशी से वापस लौट आया। गांव पहुंचकर उसने एक छोटा सा तालीमी मरकज़ कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। वक्त के साथ वो मरकज़ एक बड़े स्कूल में तब्दील हो गया और पूरा इलाका तालीम की रोशनी से जगमगा उठा। कई बरस बाद जब किसी ने अरसलान से पूछा क्या वाकई चंद का पल मौजूद था, वो मुस्कुरा कर बोला, पल सिर्फ एक रात के लिए था, मगर उसने मुझे ज़िंदगी भर का रास्ता दिखा दिया। सबक, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में इल्म, उम्मीद और भलाई की रोशनी फैलाता है, उसके लिए कामयाबी के रास्ते खुद रोशन हो जाते हैं। चंद का पल। एक सरसब्ज़ वादी में दो पहाड़ों के दरमियान एक गहरी खाई थी। लोग कहते थे कि हर पूरे चंद की रात इस खाई पर रोशनी का एक पल बनता है, मगर वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए नजर आता है। गांव का 16 साला लड़का अरसलान हमेशा इस पल की हकीकत जानना चाहता था।
एक रात वो चंद निकलते ही वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक जख्मी भीड़ पालने वाला मिला। अरसलन ने अपनी पिटीन से उसके जख्म बांधे और उसे महफूज जगह तक पहुंचाया। फिर इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो अंधेरे में रास्ता भूल गया था। अरसलन ने उसे इसके घर तक पहुंचाया। जब वो खाई के किनारे पहुंचा तो चंद अपनी पूरी आब-व-ताब से चमक रहा था। अचानक चांदनी की किरणें आपस में मिलने लगीं और वाकई एक रोशन पल नमूदार हो गया। अरसलन एहतियात से पल पार करके दूसरी तरफ पहुंचा। वहाँ ना कोई खजाना था, ना सोने के ढेर, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके नीचे एक सिंग मुरम्मर की तख्ती रखी थी। इस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, रोशनी हमेशा इसके रास्ते में उतरती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। अरसलन ने तख्ती को वहीं रहने दिया और खामोशी से वापस लौट आया। गांव पहुंचकर उसने एक छोटा सा तालीमी मरकज़ कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। वक्त के साथ वो मरकज़ एक बड़े स्कूल में तब्दील हो गया और पूरा इलाका तालीम की रोशनी से जगमगा उठा। कई बरस बाद जब किसी ने अरसलन से पूछा क्या वाकई चंद का पल मौजूद था, वो मुस्कुरा कर बोला, पल सिर्फ एक रात के लिए था मगर उसने मुझे ज़िंदगी भर का रास्ता दिखा दिया। सबक, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में इल्म, उम्मीद और भलाई की रोशनी फैलाता है उसके लिए कामयाबी के रास्ते खुद रोशन हो जाते हैं। चंद का पल। एक सरसब्ज वादी में दो पहाड़ों के दरमियान एक गहरी खाई थी। लोग कहते थे कि हर पूरे चंद की रात इस खाई पर रोशनी का एक पल बनता है मगर वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए नजर आता है। गांव का 16 साला लड़का अरसलन हमेशा इस पल की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो चंद निकलते ही वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक जख्मी भीड़ पालने वाला मिला। अरसलन ने अपनी पिटीन से उसके जख्म बांधे और उसे महफूज जगह तक पहुंचाया। फिर इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो अंधेरे में रास्ता भूल गया था। अरसलन ने उसे इसके घर तक पहुंचाया। जब वो खाई के किनारे पहुंचा तो चंद अपनी पूरी आब-व-ताब से चमक रहा था। अचानक चांदनी की किरणें आपस में मिलने लगीं और वाकई एक रोशन पल नमूदार हो गया। अरसलन एहतियात से पल पार करके दूसरी तरफ पहुंचा। वहाँ ना कोई खजाना था, ना सोने के ढेर, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके नीचे एक सिंग मुरम्मर की तख्ती रखी थी। इस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, रोशनी हमेशा इसके रास्ते में उतरती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। अरसलन ने तख्ती को वहीं रहने दिया और खामोशी से वापस लौट आया। गांव पहुंचकर उसने एक छोटा सा तालीमी मरकज़ कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। वक्त के साथ वो मरकज़ एक बड़े स्कूल में तब्दील हो गया और पूरा इलाका तालीम की रोशनी से जगमगा उठा। कई बरस बाद जब किसी ने अरसलन से पूछा क्या वाकई चंद का पल मौजूद था, वो मुस्कुरा कर बोला, पल सिर्फ एक रात के लिए था मगर उसने मुझे ज़िंदगी भर का रास्ता दिखा दिया। सबक, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में इल्म, उम्मीद और भलाई की रोशनी फैलाता है उसके लिए कामयाबी के रास्ते खुद रोशन हो जाते हैं। चंद का पल। एक सरसब्ज वादी में दो पहाड़ों के दरमियान एक गहरी खाई थी। लोग कहते थे कि हर पूरे चंद की रात इस खाई पर रोशनी का एक पल बनता है मगर वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए नजर आता है। गांव का 16 साला लड़का अरसलन हमेशा इस पल की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो चंद निकलते ही वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक जख्मी भीड़ पालने वाला मिला। अरसलन ने अपनी पिटीन से उसके जख्म बांधे और उसे महफूज जगह तक पहुंचाया। फिर इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो अंधेरे में रास्ता भूल गया था। अरसलन ने उसे इसके घर तक पहुंचाया। जब वो खाई के किनारे पहुंचा तो चंद अपनी पूरी आब-व-ताब से चमक रहा था। अचानक चांदनी की किरणें आपस में मिलने लगीं और वाकई एक रोशन पल नमूदार हो गया। अरसलन एहतियात से पल पार करके दूसरी तरफ पहुंचा। वहाँ ना कोई खजाना था, ना सोने के ढेर, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके नीचे एक सिंग मुरम्मर की तख्ती रखी थी। इस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, रोशनी हमेशा इसके रास्ते में उतरती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। अरसलन ने तख्ती को वहीं रहने दिया और खामोशी से वापस लौट आया। गांव पहुंचकर उसने एक छोटा सा तालीमी मरकज़ कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। वक्त के साथ वो मरकज़ एक बड़े स्कूल में तब्दील हो गया और पूरा इलाका तालीम की रोशनी से जगमगा उठा। कई बरस बाद जब किसी ने अरसलन से पूछा क्या वाकई चंद का पल मौजूद था, वो मुस्कुरा कर बोला, पल सिर्फ एक रात के लिए था मगर उसने मुझे ज़िंदगी भर का रास्ता दिखा दिया। सबक, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में इल्म, उम्मीद और भलाई की रोशनी फैलाता है उसके लिए कामयाबी के रास्ते खुद रोशन हो जाते हैं।
चंद का पल। एक सरसब्ज वादी में दो पहाड़ों के दरमियान एक गहरी खाई थी। लोग कहते थे कि हर पूरे चंद की रात इस खाई पर रोशनी का एक पल बनता है, मगर वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए नजर आता है। गांव का 16 साला लड़का अरसलान हमेशा इस पल की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो चंद निकलते ही वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक जख्मी भीड़ पालने वाला मिला। अरसलान ने अपनी पिटीन से उसके जख्म बांधे और उसे महफूज जगह तक पहुंचाया। फिर इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो अंधेरे में रास्ता भूल गया था। अरसलान ने उसे इसके घर तक पहुंचाया। जब वो खाई के किनारे पहुंचा तो चंद अपनी पूरी आब-व-ताब से चमक रहा था। अचानक चांदनी की किरणें आपस में मिलने लगीं और वाकई एक रोशन पल नमूदार हो गया। अरसलान एहतियात से पल पार करके दूसरी तरफ पहुंचा। वहाँ ना कोई खजाना था, ना सोने के ढेर, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके नीचे एक सिंग मुरम्मर की तख्ती रखी थी। इस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, रोशनी हमेशा इसके रास्ते में उतरती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। अरसलान ने तख्ती को वहीं रहने दिया और खामोशी से वापस लौट आया। गांव पहुंचकर उसने एक छोटा सा तालीमी मरकज़ कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। वक्त के साथ वो मरकज़ एक बड़े स्कूल में तब्दील हो गया और पूरा इलाका तालीम की रोशनी से जगमगा उठा। कई बरस बाद जब किसी ने अरसलान से पूछा क्या वाकई चंद का पल मौजूद था, वो मुस्कुरा कर बोला, पल सिर्फ एक रात के लिए था, मगर उसने मुझे ज़िंदगी भर का रास्ता दिखा दिया। सबक, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में इल्म, उम्मीद और भलाई की रोशनी फैलाता है, उसके लिए कामयाबी के रास्ते खुद रोशन हो जाते हैं। चंद का पल। एक सरसब्ज वादी में दो पहाड़ों के दरमियान एक गहरी खाई थी। लोग कहते थे कि हर पूरे चंद की रात इस खाई पर रोशनी का एक पल बनता है, मगर वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए नजर आता है। गांव का 16 साला लड़का अरसलान हमेशा इस पल की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो चंद निकलते ही वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक जख्मी भीड़ पालने वाला मिला। अरसलान ने अपनी पिटीन से उसके जख्म बांधे और उसे महफूज जगह तक पहुंचाया। फिर इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो अंधेरे में रास्ता भूल गया था। अरसलान ने उसे इसके घर तक पहुंचाया। जब वो खाई के किनारे पहुंचा तो चंद अपनी पूरी आब-व-ताब से चमक रहा था। अचानक चांदनी की किरणें आपस में मिलने लगीं और वाकई एक रोशन पल नमूदार हो गया। अरसलान एहतियात से पल पार करके दूसरी तरफ पहुंचा। वहाँ ना कोई खजाना था, ना सोने के ढेर, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके नीचे एक सिंग मुरम्मर की तख्ती रखी थी। इस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, रोशनी हमेशा इसके रास्ते में उतरती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। अरसलान ने तख्ती को वहीं रहने दिया और खामोशी से वापस लौट आया। गांव पहुंचकर उसने एक छोटा सा तालीमी मरकज़ कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। वक्त के साथ वो मरकज़ एक बड़े स्कूल में तब्दील हो गया और पूरा इलाका तालीम की रोशनी से जगमगा उठा। कई बरस बाद जब किसी ने अरसलान से पूछा क्या वाकई चंद का पल मौजूद था, वो मुस्कुरा कर बोला, पल सिर्फ एक रात के लिए था, मगर उसने मुझे ज़िंदगी भर का रास्ता दिखा दिया। सबक, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में इल्म, उम्मीद और भलाई की रोशनी फैलाता है, उसके लिए कामयाबी के रास्ते खुद रोशन हो जाते हैं। चंद का पल। एक सरसब्ज वादी में दो पहाड़ों के दरमियान एक गहरी खाई थी। लोग कहते थे कि हर पूरे चंद की रात इस खाई पर रोशनी का एक पल बनता है, मगर वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए नजर आता है। गांव का 16 साला लड़का अरसलान हमेशा इस पल की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो चंद निकलते ही वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक जख्मी भीड़ पालने वाला मिला। अरसलान ने अपनी पिटीन से उसके जख्म बांधे और उसे महफूज जगह तक पहुंचाया। फिर इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो अंधेरे में रास्ता भूल गया था। अरसलान ने उसे इसके घर तक पहुंचाया। जब वो खाई के किनारे पहुंचा तो चंद अपनी पूरी आब-व-ताब से चमक रहा था। अचानक चांदनी की किरणें आपस में मिलने लगीं और वाकई एक रोशन पल नमूदार हो गया। अरसलान एहतियात से पल पार करके दूसरी तरफ पहुंचा। वहाँ ना कोई खजाना था, ना सोने के ढेर, सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके नीचे एक सिंग मुरम्मर की तख्ती रखी थी। इस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, रोशनी हमेशा इसके रास्ते में उतरती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। अरसलान ने तख्ती को वहीं रहने दिया और खामोशी से वापस लौट आया। गांव पहुंचकर उसने एक छोटा सा तालीमी मरकज़ कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। वक्त के साथ वो मरकज़ एक बड़े स्कूल में तब्दील हो गया और पूरा इलाका तालीम की रोशनी से जगमगा उठा। कई बरस बाद जब किसी ने अरसलान से पूछा क्या वाकई चंद का पल मौजूद था, वो मुस्कुरा कर बोला,
पल सिर्फ एक रात के लिए था, मगर उसने मुझे जिंदगी भर का रास्ता दिखा दिया। सबक: जो इंसान दूसरों की जिंदगी में इल्म, उम्मीद और भलाई की रोशनी फैलाता है, उसके लिए कामयाबी के रास्ते खुद रोशन हो जाते हैं। चंद का पल। एक सरसब्ज वादी में दो पहाड़ों के दरमियान एक गहरी खाई थी। लोग कहते थे कि हर पूरे चंद की रात इस खाई पर रोशनी का एक पल बनता है, मगर वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए नजर आता है। गांव का 16 साला लड़का अरसलान हमेशा इस पल की हकीकत जानना चाहता था। एक रात वो चंद निकलते ही वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक जख्मी भीड़ पालने वाला मिला। अरसलान ने अपनी पिटीन से उसके जख्म बांधे और उसे महफूज जगह तक पहुंचाया। फिर इसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो अंधेरे में रास्ता भूल गया था। अरसलान ने उसे इसके घर तक पहुंचाया। जब वो खाई के किनारे पहुंचा तो चंद अपनी पूरी आब-व-ताब से चमक रहा था। अचानक चांदनी की किरणें आपस में मिलने लगीं और वाकई एक रोशन पल नमूदार हो गया। अरसलान एहतियात से पल पार करके दूसरी तरफ पहुंचा। वहाँ ना कोई खजाना था, ना सोने के ढेर। सिर्फ एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसके नीचे एक सिंग मुरम्मर की तख्ती रखी थी। इस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, रोशनी हमेशा इसके रास्ते में उतरती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है।